الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری دنیا کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں کچھ وقت کے لیے حاضر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے مولا کریم صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک محفل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو روئے زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں اور سیر کرتے کرتے وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی محفل میلاد شریف کی محفل یا ذکر مصطفیٰ کی محفل کہیں منعقد ہو رہی ہو، یہاں تک کہ ان فرشتوں کو کوئی محفل مل جاتی ہے تو وہ فرشتے اس محفل والوں کو جا کر کے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس محفل والوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی محفل تو آج ساری محفلوں سے ایک بلند والا محفل ہے۔ آج تو ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور ایسا شب معراج کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ آج کی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہاں سے محفل ختم ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے نبی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کریں گے، مولا ہم ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں، ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو آج شب معراج میں تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے زمانے زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے جیسے اعلان فرمایا لوگ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، آپ کو طعن و تشنیع کرنے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کے دعوت تبلیغ کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، آپ کا اسلام کا مشن دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دور بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کو 10 سال گزر جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کو 10واں سال شروع ہوتا ہے، اس 10ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا غم لاحق ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ 50واں سال گزر جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 11واں سال شروع
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11वां साल शुरू हुआ। रजब का महीना आता है और रजब के महीने में जब 27वीं तारीख आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा है। आप आराम फरमा रहे हैं कि हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। जब दरवाजे की अचानक छत एक शक होती है, छत शक होती है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं और ले जाने के बाद हतीम काबा में हरम शरीफ में ले जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद थी, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को हंसनी से चाक करके सीने मुबारक को चाक किया जाता है और फिर हजरत जिब्रील अमीन आबे जमजम से उसको धो करके आपके कल्बे अतहर को दोबारा से धो करके नूर और हिकमत से मामूर करके दोबारा से फिर उसी जगह में वापस कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सीने मुबारक को मामूर कर दिया गया, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुराक लाया जाता है। मुख्तसरन में अर्ज करता हुआ चलता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुराक लाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने ही वाले थे कि बुराक शोखी करने लगता है, उछलने कूदने लगता है। हजरत जिब्रील अमीन उससे अर्ज करते हैं, ऐ बुराक तुझे हया नहीं आती? आज तुझ पर ऐसी जात आज सवार होने वाली है कि आज से पहले तुझ पर कोई सवार ही नहीं हुआ है। ये सुन करके बुराक पानी पानी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर के चलते हैं। हजरत जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के चलते हुए हजरत जिब्रील एक मकाम पर रुकते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि 2 रकअत यहाँ नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअत नमाज अदा फरमाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ये कौन सी जगह है? चुनांचे हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि ये मदीना मुनव्वरा है, ये आपकी हिजरत का है, यहाँ पर आप हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऐसी जगह आती है, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअत नमाज और अदा फरमाइए। नबी करीम 2 रकअत नमाज अदा फरमाते हैं। फिर उसके बाद हजरत जिब्रील से पूछते हैं, ये कौन सी जगह थी? फरमाते हैं, ये वो जगह है जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया था, ये कोहे तूर है। चुनांचे आगे बढ़ते हैं। फिर एक तीसरी जगह आती है जहां पर हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं कि यहाँ पर भी 2 रकअत नमाज अदा फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअत नमाज अदा फरमाते हैं। फिर पूछते हैं, ये कौन सी जगह थी? वो कहते हैं कि बैत लहम है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका हुई थी। यहाँ से गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंच जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में देख रहे हैं कि अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास से गुजरते हैं तो देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। यहाँ से एक वाक़े की तरफ मैं इशारा करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज है। सुन्नी मनाते हैं, कोई दूसरे नहीं मनाते हैं, इसलिए कि ये वाक़या मेराज में बहुत सारे मुअज्जिज़ात का भी शुहूर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर का भी आलम पता चलता है, आपकी ताकत और आलम का पता चलता है, नबियों के जिंदा होने का भी पता चलता है। ये वो कौन लोग मनाएंगे जो खुद नबियों के बारे में मुर्दा होने का गुमान करते हैं, जो नबियों के बारे में कहते हैं वो मर कर के मिट्टी मिल गए हैं, वो कैसे ये शब मेराज मनाएंगे? शब मेराज तो ये सुन्नियों का ही खासा है, शब मेराज तो सुन्नी ही मनाएंगे। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल-अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने हराम फरमा दिया है कि जमीन पर के अंबिया के जिस्म को खाए और अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और रिस्क दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से गुजरने के बाद जब बैतुल मक़दिस में पहुंचते हैं, यहाँ पर देखिए कि नबियों की रफ्तार का आलम क्या है कि नबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से सवार होकर के जा रहे हैं, लेकिन अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे थे कि कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अभी वहां पर जाकर के देखते हैं कि सारे नबी जो हैं सब बनाए सब लगे हुए अक्सा में मौजूद हैं। हजरत जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुराक को एक खूंटे से बांध देते हैं और फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन आगे बढ़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे
बढ़ कर के सबकी इमामत फरमाते हैं। ये ऐसी मुबारक जमात है, आज जमात की इमामत फरमाने वाला ऐसा इंसान है जो तमाम नबियों का सरदार है और सबकी इमामत फरमा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी इमामत फरमाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नंबर एक वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे नबी अपने अपने औसाफ बयान फरमाते हैं, हर नबी अपने अपने औसाफ बयान फरमाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिर में ऐसा कलाम फरमाते हैं कि सारे नबी खामोश हो जाते हैं। फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मुझे जिन्नो इंसान का मालिक बनाकर भेजा है, मुझे पूरी जमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मुझे जो है हश्र का मालिक बनाया है, मुझे शफाअत का हकदार बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये फजीलतें सारे अंबिया इकराम सुनते हैं तो कहते हैं इसी फजीलत की वजह से आप हम पर फाइक हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब वहां से गुजरते हैं, अब आसमानों की सैर करते हुए चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद दोबारा दूसरे आसमान पर चढ़ते हैं तो वहां पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पर जाते हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। चौथे आसमान पर चढ़ते हैं तो वहां पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। पांचवें आसमान पर पहुंचते हैं तो वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। छठे आसमान पर जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा था कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, अब वहां देखा तो वो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमा रहे हैं। फिर सातवें आसमान पर चढ़ते हैं जहां पर देखते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक चले जाते हैं और सिदरतुल मुंतहा पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं हजरत जिब्रील अमीन रुक जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ जिब्रील चलो आगे चलो। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी हद यहीं तक थी, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, अगर मैं इसके आगे चला गया तो अल्लाह ताला की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तने तनहा आगे चले जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा कौसैन से भी आगे पहुंच चले आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक 50,000 बरस की राह है, 50,000 बरस की राह है, उससे आगे मुस्तवा है, उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल जाने उसके आगे अर्श के 70 हिजाबात हैं और हर हिजाब से दूसरे हिजाब तक 500 बरस का फासला है और उससे आगे अर्श आज़म और उन तमाम वसातों में फरिश्ते भरे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे भी आगे चले गए और अल्लाह ताला का अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार फरमाया। दुनिया के अंदर किसी को भी ये वसत नहीं है, ये कमाल नहीं मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सिर्फ कमाल मिला है कि आपने दुनिया के अंदर बेदारी की हालत में अल्लाह ताला का दीदार फरमाया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों हुई, इसकी कई हिकमतें उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। तफसीर नईमी में हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इसके तहत चंद हिकमतें बयान फरमाते हैं। एक हिकमत तो ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनसे कलाम फरमाया। अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान पर चले गए, जन्नत की सैर करने लगे। अब ये जरूरी था कि जो नबियों का सरदार है उसको जन्नत में बुलाया जाए ताकि जन्नत की सैर कराई जाए और अल्लाह ताला से कलाम का शर्फ भी हासिल हो जाए। फिर दूसरी हिकमत ये बयान की गई कि नबी तमाम जितने भी नबी आए उन सब ने अपनी अपनी उम्मतों को ये दावत दी, अपनी अपनी उम्मतों को ये बयान किया कि अल्लाह एक है। अल्लाह के बारे में ये बताया अल्लाह को एक मानो, जन्नत के बारे में बताया, जहन्नम से डराया, लेकिन किसी ने भी देख कर नहीं बताया था। सब अपनी गवाही देते आ रहे थे लेकिन किसी ने भी आंखों से नहीं देखा था। अब जरूरी था कि आंखों से कोई देखने वाली जात हो ताकि उस पर मोहर लग जाए, क्योंकि देखी हुई चीज जो होती है वो गवाही से ज्यादा मकबूल हुआ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा करके बता दिया गया कि ऐसी हस्ती भी है जो सारी अल्लाह ताला को भी देखने वाली है, जन्नत को भी देखने वाली है और सिदरतुल मुंतहा को भी देखने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह से ये जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह से सैर की। शब मेराज के ताल्लुक से कुरान पाक में जो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही
यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेअब्दी जिक्र फरमाया, बेरूही नहीं फरमाया, क्योंकि अब्द जो है ये जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि जिस्म और रूह के साथ मेराज फरमाई है। अगर ये फरमाया जाता बेरूही तो ये पता चलता कि रूह के साथ आपने मेराज फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज रूह के साथ तो रूहानी तौर पर तो 34 मरतबा हुई है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर मेराज होना ही एक मरतबा साबित है। और वैसे तो रूहानी तौर पर ख्वाब में तो बहुत सारे उलमा इकराम हजरत इमाम आजम के बारे में भी साबित है कि आपको भी शबे मेराज रूहानी तौर पर तकरीबन 100 मरतबा हासिल हुई है, लेकिन दुनिया में रह करके किसी को भी आंखों की हालत से अल्लाह ताला का किसी ने भी दीदार नहीं किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में हजरत आयशा की तरफ मंसूब करते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज में उनका जिस्म वहां से अलग नहीं पाया, उनका जिस्म अपने साथ ही पाया। तो ये शबे मेराज का ये बहुत सारे वाकयात हैं, जहां उनके अंदर ये वाकयात मिलते हैं, वहां हजरत आयशा का ये वाकयात उसके साथ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मौजूद था, रूहानी तौर पर आपको मेराज हुई थी, लेकिन हजरत आयशा का शबे मेराज का इनकार करना कहीं साबित नहीं होता है। ये तो साबित होता है कि आपको जो है मैंने कभी जिस्म आपका जो है अपनी यहाँ से गुम नहीं पाया रात के वक्त में। तो ये इससे ये साबित है कि हो सकता है कि हजरत आयशा ने जिस रात का वाक़या बयान किया है उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म वहां हो, लेकिन रूहानी तौर पर मेराज हुई हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रात हजरत उम्मे हानी के घर थे, उम्मे हानी के घर उम्मे आराम फरमा रहे थे, वहां से आपको मेराज हुई है। तो वो हजरत आयशा वहां मौजूद ही नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज साबित है जिस्म के साथ, वो हजरत आयशा को अलग कौल बयान कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अलग मेराज हुई है। इसी पर एक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया कि मुझे ये तो मालूम नहीं सही तौर पर कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ, अर्श पर एक तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है जिब्रील अल्लाह की कसम वो सितारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बाज़ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे रात के वक्त में थोड़े से वक्त में चले गए, इतनी दूर, इतने आसमानों की भी सैर करके सिदरतुल मुंतहा से भी इतने पल में चले गए। आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको और आसान कर दिया है, इसको और आसान कर दिया है कि आज देखें कि आज इंसान हवाई जहाज के जरिए जहां 1 घंटे में कितनी दूर का रास्ते वो तय कर लेता है। ये तो इंसानों की ताकत है, और फिर वो इंसानों की ताकत का ही आलम है, फिर अल्लाह ताला की ताकत का क्या आलम होगा कि अल्लाह ताला जब सैर करा रहा है उस ताकत का क्या आलम होगा। यहाँ तक तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लोग ये शक व शुबा में रहते हैं, तो एक इंसान जो है यहाँ पर नागपुर के अंदर है और उससे दूसरे इंसान को वो देखता है, कहता है अरे भाई आप यहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो दूसरी जगह देखता है, फिर ताज्जुब में करता है, अरे आप यहाँ भी नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक इंसान को यहाँ भी देख रहा है, फिर कुछ दिन के बाद वहां देख रहा है, तो ताज्जुब कर रहा है, लेकिन अपने जाए मकाम पर देखता है तो ताज्जुब नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए मकाम ये मक्का मुकर्रमा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए मकाम ये मदीना मुनव्वरा नहीं है, वो तो अर्श का तारा है। अर्श से तुलू होकर के जमीन पर कैसे आया, ये मुश्किल है। ये ताज्जुब वाली बात है कि वो अर्श का तारा मक्का में कैसे तुलू हो गए। सुभान अल्लाह। अर्श उसका मकाम तो सिदरतुल मुंतहा से आके अर्श आज़म पर है, वो सिदरतुल मुंतहा से जिसका मकाम जो हो वो अपने मकाम पर आसानी से जा सकता है, लेकिन दूसरी जगह पर आना ये मुश्किल होता है। वो तो उसका अपना मकाम जाना पहचाना है, वहां आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आ रहे हैं,
अर्ज करके फरमाते हैं, अरे आपकी उम्मत तो मेरी उम्मत से ज्यादा कमजोर है, आपकी उम्मत ये 50 नमाजें कहाँ पढ़ पाएगी, जाइए दोबारा से अल्लाह ताला की बारगाह में जाइए और इनको कम कराइए। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं। अब यहाँ देखिए सिदरतुल मुंतहा तक तो हजरत जिब्रील अमीन ले जाने वाले साथ थे। अब नबी का आलम ये है कि खुद आ रहे हैं, खुद जा रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा था, ये इसलिए कहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर आखिर में जब बार-बार इसरार किया तो हजरत अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैं कोहे तूर पर तजल्ली डालता हूँ, अगर ये कोहे तूर मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर सका तो तुम मेरा दीदार फरमाओगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने जब तजल्ली कोहे तूर पर डाली तो कोहे तूर पास हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली को देख करके बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीनाई और ज्यादा बढ़ गई। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस तजल्ली को देखने की वजह से उनकी बीनाई इतनी बढ़ गई और जिस जात ने बिल्कुल सराब आंखों से अल्लाह ताला का दीदार किया है उसकी आंखों का बसारत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमान पर चले जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तमन्ना की थी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश हुई कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जिसने उस जात को देखा हो, ताकि उस जात को देखने वाले का मैं दीदार कर सकूं और मेरी आंखें ठंडी होती रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं और वहां से आ रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां देख रहे हैं कि ये वही जात है जो अल्लाह ताला का दीदार करके आ रही है। इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी सुकून मिल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ तक कि 45 नमाजें कम हो जाती हैं। अब 45 नमाजें कम हो गई, दोबारा से फिर आशा करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब मैं नहीं जा सकता, अब मुझे शर्म महसूस होती है, अब मैं इतनी नमाजें काफी हैं। इस पर बाज़ लोग मस्खरे लोग क्या कहते हैं, काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा और चले गए होते तो सारी माफ हो जाती। इस तरह ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा और चले हुए होते। नबी करीम अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया के अंदर भेजा, अल्लाह ताला के जो फरमान है वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहें नबूवत देख रही थी कि ये उम्मत जो है 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकेगी। आज हम अपने हालात को देख सकते हैं कि आज हम 5 नमाजों के लिए भी तैयार नहीं हो पाते हैं। जुमा को नमाज अदा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे 5 नमाजें भी अदा नहीं हो रही है। गोया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस जमाने में इस मुस्तकबिल के जमाने की खबर दे रहे थे कि आपकी उम्मत बड़ी कमजोर है, आपकी उम्मत ये 5 नमाजें भी ना पढ़ सकेगी। बहरहाल कहने का मतलब ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहां से वापस आ जाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, बहुत तफसील है इसके अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो कुफार ने हंगामा कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं रात के वक्त में आया हूँ, इतनी लंबी मैंने सैर की है, सिदरतुल मुंतहा, ये बयान किया तो कुफार शोर करने लगे, ये तो मजनून है, ये कहाँ ऐसी झूठी बातें बयान कर रहा है। लोगों ने इस तरह से जाकर के बयान करना शुरू किया, सोचा कि चलो सिद्दीक़ अकबर से बयान किया जाए, वो तो शायद अगर वो इसको झुठला देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। चुनांचे भागे भागे कुफार हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारे आज महबूब को क्या हो गया, आज वो ऐसी बातें कर रहा है कि रात के मैंने थोड़े हिस्से में यहाँ से वहां की सैर की और वहां से अर्श आज़म तक कहा। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जैसे इसको सुनते हैं और कहते हैं अगर मेरे नबी ने ये करवाया तो जरूर सच फरमाया है, मैं सुभान अल्लाह। चुनांचे हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का लक़ब भी सिद्दीक़ इसी निस्बत से सिद्दीक़ हो गया कि गोया के ये तस्दीक करने वाले हैं। वक्त काफी हो गया, मैं इसी पर अपने बयान को पूरा कर रहा हूँ और बयान के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ बोलने में